This is conference will now be CSI recorded. EICD. Now the Jenkins, the other word is CSI/CD. That means the continuous integration and continuous development or deployment. Second, it is a open source tools. Jenkins is open source tool. तो Jenkins जो है गाइस वो एक ओपन सोर्स टूल है. Written in Java language और Jenkins जो है is a written in WRITTEN written in Java language. Developed developed by Sun Microsystems in 2012 और Jenkins को जिसने बनाया the company name is Sun Microsystem in 2004. तो 2004 में सन माइक्रोसिस्टम ने इसको बनाया है और इसको बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज करी गई है इज इन जावा एंड इट इज अ ओपन सोर्स टूल एंड Jenkins provide automation such as pull, push, build, test, deploy, etc. If you can pull any data, push any data, build data, test, deploy and other, ये सारा काम Jenkins का है. Now the process is this कि suppose if you remember कि we have just कि हम लोगों ने git पढ़ा था and now is a git repository. Git repository. So now this is a git and this is a git repository. Now point it this like a developer write a code and like the code is look like a index index.html and developer push this code in a GitHub repository. Got it this point? Yes or no guys? Yes, sir. Now this code is come in my repository. After that, I'm just using a Jenkins and now add a condition like a create a job. The Jenkins is pull a code and start build image and test image and then save image in Docker Hub. This is a work of Jenkins. Like this is a one more thing I'm explaining you is the Docker Hub. Now the Jenkins automatically pulls the code and start build test and now the save this image in a Docker Hub.
Got it, guys? First process is clear. Everyone got it? अभी तक हम ये मैनुअली कर रहे थे. Is it clear, everyone? Amit, Asfaq, Gaurav, Pankaj, Parul, Umar, Rakesh. Yes, sir. After that, I'm also explain you कि like I'm deploy a website in a VM. Also, I'm deploy a website in a container, or either we have deploy a website inside the pod. This is my pod. Now this is a EC2 instance. Now this is my container. You know the container deploy in a Docker engine, and now the pod deploy in a Kubernetes. Got it? So there's a three infrastructure is available. Now the next point, the Jenkins pull image from Docker Hub and create container. Now the second job I'm asked that now Jenkins pull a image from Docker Hub. तो यहाँ पे इसने क्या करा है? इट्स द फर्स्ट कि उसने इमेज को पहले बना के कहां पे रख दिया? पुश कर दिया. नाउ आफ्टर दैट अब क्या कर रहा है? पुल को इमेज करेगा और क्या क्रिएट कर देगा? कंटेनर क्रिएट कर देगा. कहां पर? आइदर यू कैन क्रिएट अ कंटेनर इन अ डॉकर और आइदर यू क्रिएट अ कंटेनर इनसाइड द पॉड. और आइदर कि आप अगर कोई वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते तो deploy a code in a web server. Got it the point, everyone? The process is clear. Yes, sir. So these all functions provided by the Jenkins. Deploy a container, deploy a pod, or deploy. So choice is yours कि आप जो अपना डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वर्चुअल मशीन पे करना चाहते हो या आइदर आप कंटेनर के अंदर करना चाहते हो और आइदर यू पॉड के अंदर करना चाहते हो. दिस ऑल वर्क इन CI सर्वर, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सर्वर. The other name is CSI CD server or either a Jenkins server. Clear the concept, everyone? पूरा सिनेरियो समझ में अब आया? Why I'm using Git, why I'm using Docker, why I'm using a container, or why I'm using the pod? Everyone, the concept is clear? Yes, sir. Asfaq, Pankaj, Parul. सर एक बार रिपीट Now, कर दो, क्लियर नहीं हुआ. देखिए सिंपल सा है. मैंने ये बोला है पारुल कि जेंकिन डेवलपर ने कोड राइट करा, कोई इमेज राइट करी, उस इमेज को कहां सेव कर दिया? यहाँ पर. यहाँ से जेंकिन ने क्या करा? पुल करा और इमेज को क्या करा? बिल्ड करा और बिल्ड करने के बाद उसने कहां सेव कर दिया? यहाँ पर. अब आपको कंटेनर बनाना है तो जेंकिन क्या करेगा? इस इमेज को दोबारा से पुल करेगा और अपना कंटेनर डिप्लॉय कर देगा. पॉड डिप्लॉय करना है तो पुल करेगा, पॉड डिप्लॉय कर देगा. और कोई ऐसा कोड है जो वेबसाइट बनानी है तो वो उसको वेबसाइट पे यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा. गॉट इट? पारुल समझ में आया पूरा प्रोसेस? तो यहाँ पर कोडिंग कहाँ पे हो रही है? जहां पर हमारा गिट पड़ा हुआ है. सर AWS के अंदर CI/CD पाइपलाइन के अंदर कोड कमिट के अंदर क्या होता है? डिप्लॉयमेंट कहाँ पर हो रहा है? इन सर्वर पे. इधर कंटेनर आप बना रहे हो, पॉड 1 और EC2, ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है. बट बिल्ड वगैरह प्रोसेस कहाँ हो रहा है? बिटवीन यहाँ की. यहाँ से कोड लेके जेंकिन बिल्ड कर रहा है और सेव कहाँ पे कर रहा है? डॉकर हब पर हम सेव करा रहे हैं. और इधर चॉइस कि आप कहाँ पर सेव कराना चाहते हो. या कोई कुछ कह रहा था अभी? जैसे कि सर मैं करता था Amazon वेब सर्विस पे CI/CD पाइपलाइन कोड कमिट, वो कोड कमिट की जगह गिटहब में डाल गिटहब हटा के कोड कमिट में करते थे. हाँ, आप कमिट कर सकते हो. आप चाहे गिटहब के अंदर ही वापस डाल सकते हो. वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज बना रहे हो.
गॉट इट। अगर मैं डॉकर से रिलेटेड इमेज बना रहा हूँ तो मैं डॉकर हब पे करूंगा। गॉट इट। सो डिपेंड ना कि हम एक इमेज बना रहे हैं, सो डिपेंड्स कि वो हमारा जो पूरा इंटायर प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट इस प्रोसेस में चलता है। ओके सर। The process is complete. Scenario. लॉजिक क्लियर हुआ? वाई डेवऑप्स इज यूज्ड? ये आपका डेवऑप्स का वर्क है कि यहाँ पर दोनों टीम सब भर के काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या ऐसा होता था कि पहले क्या होता था कि डेवलपर ने जो कोड लिखा वो अपने ही सिस्टम पे रह के यहीं पर ही टेस्ट करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब उसको हमने कंटेनर पे, पॉड पे या सिस्टम पे चलाया तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। यस और नो गाइस, गॉट इट द पॉइंट? अब हमने कहा कि डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखना है, टेस्ट टीम हमारी क्या करेगी, यहां पर काम कर रही है। अगर कोई ड्यूरिंग प्रॉब्लम आती है टेस्टिंग में, वो डायरेक्ट डेवलपर को भेज देगा। गॉट इट? जब टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तो वो क्या कर देगा, उस इमेज को बना देगा। अब किसी को भी, डेवलपर को कोई भी चाहिए, वो यहाँ से इस इमेज को पुल करेगा और अपना कंटेनर, क्योंकि इमेज आ रही है। पहले क्या था कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करते थे, इंस्टॉल MS ऑफिस, तो आपका सिस्टम 32 बिट है, 64 बिट है, ये चीजें मैटर करती थी। बट नाउ मैं कह रहा हूं कि जो MS ऑफिस है वो विंडो 10 पर है, तो आपने विंडो 10 प्लस MS ऑफिस दोनों को मिक्स करके इमेज बना दी। तो अब मैं जब इस इमेज से बनाऊंगा तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट है। तो वो जो एरर आते थे डिपेंडेंसीज के, वो सारे एरर आने बंद हो गए। गॉट इट द पॉइंट गाइस? देखे ना, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो ये सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। बट देखिए, अगर मैं यहाँ पे अब जेंकिन इंस्टॉल करूंगा, मैं दो तरीके, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। क्या डिफरेंस है कि नाउ आई एम इंस्टॉल अ जेंकिन, एक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेंकिन मैनुअली इंस्टॉल करूंगा। नाउ आई एम इंस्टॉल अ जेंकिन मैनुअली इन अ EC2 सर्वर, जो पहले वाला प्रोसेस था। एक मैं जेंकिन इंस्टॉल कर रहा हूँ EC2 पर, इंस्टेंस पर, एंड नाउ द सेकंड आई एम डिप्लॉय जेंकिन इन अ पॉड, सॉरी इन अ कंटेनर, और एक मैं जेंकिन इंस्टॉल करूंगा कंटेनर। तो जेंकिन जब मैं कंटेनर में करूंगा, तो नाउ आई एम पुल अ इमेज फ्रॉम डॉकर हब। तो आप देख रहे हैं, डॉकर हब से अगर मैं जेंकिन की इमेज पुल करके बनाता हूं तब क्या बेनिफिट है, और अगर आप मैनुअल प्रोसेस करते हैं तब क्या प्रॉब्लम आएगी। नाउ गाइस, व्हेन यू इंस्टॉल अ जेंकिन, यू इंस्टॉल अ जावा। आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट कंटेनर के अंदर ऐसा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इमेज के अंदर ऑलरेडी जावा क्या है, एडिड है। जेंकिन इंस्टॉल करने के लिए लाइक आप यहाँ पे ले रहे हो लिनक्स, बट जब आप कंटेनर बनाएंगे तो इमेज के अंदर ऑलरेडी लिनक्स की डिपेंडेंसी फाइल्स क्या है, एड ऑन है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ द इंस्टॉल अ जेंकिन सेटअप, आपको जेंकिन का सेटअप फेच करना पड़ेगा, देन इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट कंटेनर के अंदर ऑलरेडी जेंकिन क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको सिर्फ क्या है, उस इमेज को रन करना है अपने कंटेनर पे, तो सारे के सारे सेटअप ऑलरेडी इनबिल्ड आ जाएगा। अब ये सारी चीज इंस्टॉल करने में कोई एरर आएंगे तो वो सब फाउंड किसको करने पड़ेंगे, आपको। बट अगर आप इमेज से कंटेनर बनाते तो ये सारा कोई भी एरर आएगा ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो वो इमेज ही तो हम बनाते हैं ना। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, वही तो इमेजेस बनानी है, वही तो हमें डेवलपर से डिप्लॉय करानी है। लाइक आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को MS ऑफिस भी चाहिए, जावा भी चाहिए, SQL भी चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, लाइक रेड हैट लिनक्स। तो आपने अब डेवलपर उसी हिसाब से कोड लिखेगा।
बिल्ड करेगा और इमेज बना के रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम हमें डिप्लॉयमेंट करना है तो हम उस इमेज को जब रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दीज सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आ जाएंगे मेरे पास। यही काम है। पहले क्या था कि डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, लाइक एक कोई एप्लीकेशन बनाई एंड्रॉइड की ऐप, वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है पुराना। अब क्लाइंट लेटेस्ट न्यू विंडो 11 यूज कर रहा है। द डिफरेंस कि उसने 32 बिट पे बनाया इसलिए उसके यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है, बट आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, सो दीज आर द डिपेंडेंसीज इश्यूज। तो ये सारे इश्यूज खत्म ही हो जाएंगे। लाइक डेवलपर को हम बोलेंगे कि आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों बनाने हैं अब, तो दोनों बनाएगा। Clear guys, how to install Jenkins? Now start. Yes, sir. So I'm just go to the Yes, portal sir. and create a 2 virtual machines, one for Docker Hub and second for the Jenkins. Now click on a launch instance. And guys देखिए पोर्टल चेंज हो चुका है, EC2 का पोर्टल कंप्लीटली चेंज हो चुका है गाइस, नया पोर्टल आ चुका है। नंबर ऑफ मशीन्स मैं यहाँ पे 2 मशीन्स बना रहा हूँ। Which name is it? Like Jenkins Jenkins. And image I'm select AWS, Amazon Linux, or either Ubuntu or either Red Hat, choice is your. Now I'm select T2 micro, 64 bit T2 medium, the $0.17 per hour आपके चार्जेस लगेंगे। और आइदर देखिए पहले प्राइसिंग नहीं दिखाता था, बट अब आपको हर हार्डवेयर का प्राइसिंग दिखा रहा है कि किसका प्राइस कितना पर आवर लगेगा। So this is a new console, बड़ा इंटरेस्टिंग है। The key pair I'm select a key pair for Linux key pair. Networking, inside the networking we select a security group, select a zone, which zone you can deploy. Public IP enable. Now the create a security group. Now select existing security group and select like Git project. This is my existing security group, and now launch instance. Guys, I'm created 2 instances. One is Jenkins and second is Docker engine. So I'm just change the name. Got it, guys? So first of all, I'm just create 2 instances. One is Jenkins and second is Docker engine. So एक को मैंने यहाँ पर EC2 instance लिया है. And now the public IP is now is 1.1.1.1 is the public IP. यहाँ पर भी guys मैंने क्या लिया है कि EC2 instance लिया है, the public IP is like a 1.1.2. And now the first of all I'm just install Amazon Linux. यहाँ पर मैंने Amazon Linux इंस्टॉल करा है, yes or no? सेम है, यहाँ पर भी मैंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है? Amazon Linux लिया है। Both side I'm create a same Amazon Linux operating system. Now in this system I'm install a Docker. इस बार मैं इंस्टॉल करूंगा Docker. And यहाँ पर I'm just directly installed Jenkins. Now I'm install Java. Then install download Jenkins software package. Then install Jenkins. Got it. But यहाँ पे क्या है, directly we have just create a Jenkins container. और डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, Jenkins कंटेनर यहां से क्रिएट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ डॉकर इंजन. गॉट इट? इज इट क्लियर द डिफरेंस गाइस? तो यहाँ पर सारा काम मैनुअली करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ कंटेनर बनाना है, उस कंटेनर के अंदर ऑलरेडी डेवलपर्स ने सारी सेटिंग्स इंक्लूड करी होंगी. कौन कौन सी सेटिंग? नाउ द डेवलपर ऐड ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड बाय द Jenkins. Java already installed, package is already installed, और the Jenkins is already installed. ये सारा काम ऑलरेडी इस इमेज के अंदर होगा. नाउ हमें नीड नहीं है, हम ये वर्क यहाँ पर मैनुअली करें. Got it everyone?
जब मैं इमेज से बनाऊंगा तो ये सारी चीज इनबिल्ट आ जाएंगे मेरे पास। क्लियर गाइस? यस सर। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये सारा मैनुअली करना पड़ेगा। दो टू प्रोसेस है ना। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवऑप्स, कंटेनराइजेशन सिस्टम, ठीक है, और ये आपका विदाउट कंटेनराइजेशन सिस्टम। ये पहले वाला है कि यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी ने जेंकिन का सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने 32 बिट का बनाया है, लेकिन मैं अमेजोन लिनक्स 64 बिट कर रहा हूं, तो जेंकिन चलेगा नहीं। जावा उसने करा है जावा 12, मैं कर रहा हूं जावा 7, तो भी डिपेंडेंसी से एरर आएंगे। गॉट इट एवरीवन? बट यहाँ पे सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग है। परफेक्ट चलने के बाद मैंने इमेज दिया है, तो इस इमेज के अंदर ये सारी चीज इन्वॉल्व है, तो मेरा एरर आएगा नहीं, मेरा चैलेंज कोई भी आएगा ही नहीं। इमेज करेंगे ना, अभी आ रहे हैं। So now guys, I'm back to the portal and refresh it, and now this is a Jenkins. Now I'm just give the Docker engine. So सबसे पहले हम मैनुअल इंस्टॉल कर रहे हैं Jenkins पर। Same process, how to install Jenkins. Now I'm just copy the public IP, SSH, गाइस एक दो एक्स्ट्रा क्लास लग जाएंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इतना आराम आराम से करिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि मेरे को इन 2 वीक में खत्म ही करना है, 2 वीक और लग जाएंगे, लग जाने दो, बट प्रॉपर फिनिश करेंगे हम। नाउ गाइस, sudo su hyphen yum update hyphen y, update the repository. Clear? Now install a Jenkins. I'm just go to the Jenkins official website, install a Jenkins, then click on install Jenkins. Now which operating system I'm using? A Linux. Linux में भी कौन सा? Redhat, क्योंकि जो Amazon Linux है वो Redhat है। Long term मतलब this is a long term and this is for short term. Now the first, install a Java. So now the yum install Java. First of all, I am install a Java. So now it's extract command is also used. So now I'm using this command. First install a Java. Also guys, I'm share a command with you in a chat box. आप copy paste वहां से कर सकते हो. This is the first command. After that you can see guys, the next sudo wget मतलब कि वो उस पैकेज को डाउनलोड करेगा, and then उस डाउनलोड करने के बाद सेकंड कमांड है sudo rpm import package, और उस पैकेज को क्या कर देगा? इंपोर्ट कर देगा इस लोकेशन पे। एंड नाउ उसके बाद थर्ड कमांड क्या है? sudo upgrade, और उस पैकेज को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा मेरी yum repository से। नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस ऑल 3 कमांड। जेंकिन का है ना। and now right click and then paste and now sudo upgrade. So now यहाँ पर मेरा पैकेज अपग्रेड हो गया। These all 3 commands is run. So पहले इसने क्या करा? पैकेज को डाउनलोड करा, then मूव कर दिया, इंपोर्ट कर दिया उस लोकेशन पे, and now then update our repository. After that, I'm install a Jenkins. Now you can install a Jenkins. The command is yum install Jenkins. क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन पे हूं इसलिए sudo नहीं लगा रहा, और आप अगर एडमिन पे नहीं सुपर यूजर से हो तो आप sudo कमांड का यूज करेंगे। and yum install Jenkins, I'm just click and paste. तो देखिए सारा का सारा काम मैनुअली मुझे करना पड़ रहा है। और आफ्टर दैट आई एम जस्ट systemctl daemons, मैं इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर रहा हूं। तो नाउ द Jenkins इज रनिंग ऑन, अभी 3% हुआ है।
Got it the point everyone? Now जब तक ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है मैं क्या करता हूँ सेकंड मशीन से भी लॉगिन हो लेता हूँ. Now this is my Jenkins. In VM. तो गाइस VM पे करें या फिजिकल मशीन पे, आप जिस मर्जी पे डायरेक्ट कर सकते हो. ना अगर आपको पॉड्स के अंदर कंटेनर बनाना है तो सेम है, मैं डायरेक्ट डॉकर पे कर लेता हूँ. Now I'm just copy the public IP of another machine. Copy this public IP. गाइस अगर प्रैक्टिस छोड़ देना तो दोबारा से स्टार्ट कर देना. And now guys, this is my Docker engine. And now sudo su hyphen yum update hyphen y, then yum instll install docker docker space hyphen y. I'm install a docker. Now service service docker start start, then clear. And now I'm create a container docker run space hyphen I space hyphen D space hyphen name of container like a Jenkins Jenkins hyphen con1 hyphen P for port number is 8080 colon 8080. This is the default port number of Jenkins, or image Jenkins Jenkins slash Jenkins Jenkins. This is the name of Jenkins image. And now enter. गाइस देखिए जेंकिन की इमेज को पुल करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा कंटेनर बना देगा. तो मुझे ना कुछ जावा इंस्टॉल करना ना कुछ करना, व्हाटएवर, मुझे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे ये मेरा जेंकिन का कंटेनर बना देगा. बट गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या अभी मेरा इंस्टॉल्ड ही हो रहा है. गॉट इट. यहाँ पे मेरा अभी जेंकिन क्या हो रहा है, इंस्टॉल ही हो रहा है. बट यहाँ पर देखिए मेरा कंटेनर बनके रेडी भी हो गया. अगर आप देखना चाहते हैं docker ps. Now your container is running on. After that you log in with container, so docker exec execute hyphen it, give the container name is Jenkins hyphen con1 and slash bin slash bash. Now you log in with container. और अब आपको अगर Jenkins का एक्सेस करना है, so simply guys you can just copy the public IP. I'm just copy this public IP and come to here. Now paste, and default port number is Jenkins is 8080. Now enter. तो देखिए कंटेनर पे मैंने कितना फास्ट काम करा. क्या हुआ भाई कंटेनर. टेक अ टाइम नाउ. बट अगर आप यहाँ पे फिजिकल मशीन पे देखें तो नाउ द जेंकिन इज इन 82%. इसके बाद मुझे जेंकिन की सर्विसेज रिस्टार्ट करनी पड़ेंगी, सारा काम करना पड़ेगा. गॉट इट द डिफरेंस गाइस? दोनों में समझ में आया डिफरेंस क्या है? अमित, अस्फाक, गौरव, पंकज, पारुल, कुमार, राकेश. यस सर. Yes, sir. कुल मिला के पढ़ना Yes, sir. पड़ेगा. यस और नो? यस सर, पढ़ना तो पड़ेगा. हमारा कुछ नहीं होने वाला. Anyways. So now just a minute, it is 92%.
तो देखिए दोनों में यही फर्क है कि यहाँ मैंने कंटेनर बनाया और वहां पर मैंने वो डिप्लॉयमेंट कराया। व्हाट हैपन, मेरी मशीन क्यों स्लो हो रही है? नाउ गाइस देखिए यहाँ पे भी मेरा सर सक्सेसफुली आपके जेंकिन, या बताइए सर आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। तो नहीं आ रहा। Now guys, after install I'm just reload the Jenkins services, copy and come to here. This is a Jenkins system and now the paste, reload the service. Now I'm restart the service. आपको पता है restart करने के लिए command है systemctl start Jenkins or either a restart Jenkins. And now if you can check a status, you can see the command is a systemctl status Jenkins. Wait guys, it's restart the services. Now again docker execute -it -bin bash. The container is not running. Okay, docker ps, like docker ps space -a and dock docker start str start and give the container name or either a container id. Now type the docker ps, this container is running on, and now again refresh it. Now guys you can see the Jenkins. ये मेरा जो Jenkins है guys, ये container वाला Jenkins है मेरा. Got it? Now कि मैंने जो अपनी physical machine पे बनाया है वो भी हम देख लेते हैं. Now the my service is in, check the status. Services है, daemons means service. Now guys I'm just check the status of the Jenkins. So status, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव होगी. नाउ अगर आप इस जेंकिन को एक्सेस करना चाहते हो फिजिकल मशीन वाले को, द सेम प्रोसेस है गाइस. यू कैन कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ दिस मशीन. देखिए डिपेंडेंसीज के आने के चांस ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसीज के आएंगे तो जेंकिन का कंटेनर अमित बनेगा ही नहीं. गॉट इट? आप जो पूछ रहे हो ना ये डॉकर के अंदर बनाएंगे तो डिपेंडेंसीज के एरर आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि जेंकिन इंस्टॉल होगा. तो देखिए हमने बनाया कोई एरर ही नहीं आया, जेंकिन चल गया. बट जो हमने बनाया है उसमें अगर जेंकिन इंस्टॉल ही नहीं हुआ है आपका प्रॉपर, तो आपका ये पोर्टल ओपन ही नहीं होगा. तो नाउ गाइस देखिए एक ये आपका EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय है और ये आपके पोर्टल डॉकर पे इंस्टॉल है. बहुत आर की 13 and 120 IP is a physical system और 21 is a container. Now how to log in? So guys log in होने के लिए you can see that this is the location of the password. ये हमारी क्या है, जेंकिन के डिफॉल्ट पासवर्ड की लोकेशन है. नाउ कॉपी एंड गो टू द, पहले मैं डॉकर वाले पे लॉगिन कर रहा हूं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ डॉकर कंटेनर और यहाँ पे टाइप लॉगिन विद कंटेनर. सबसे पहले आपको कंटेनर से लॉगिन होना है गाइस. सो नाउ द डॉकर एग्जीक्यूट, और कंटेनर से लॉगिन होने के बाद कैट और जो फाइल आपने वहां से कॉपी करी है पेस्ट, और देखिए ये पासवर्ड आपको मिल गया जो आपने कंटेनर पे बनाया है जेंकिन का.
copied and I'm come to browser. ये वाला मेरा container 21 वाला जो है ये मेरा container पे deploy है and now continue. And now this is a plugins. Plugins मतलब supported software जो minimum recommended softwares required है. Now install plugins. So guys ये plugins आपके किस पे है? Container पे Jenkins है. Now अगर आप physical machine वाला करना चाहते हैं same है. This is a location of password copy. After that उसके बाद ही आपसे new admin password और user create करने के लिए बोलेगा. And now I'm just go to the physical machine. अब मैं जा रहा हूँ physical machine पे जहाँ पे Jenkins मैंने install करा है. Now the cat and paste. Now the copy. Control C. And now अपने आप ही जनरेट करेगा, वो बता भी रहा है प्लीज कॉपी द पासवर्ड फॉर द इंटायर लोकेशन एंड पेस्ट इन बिलो. इस लोकेशन पे आपको पासवर्ड है. नाउ कंटिन्यू एंड नाउ इंस्टॉल. तो गाइस दोनों में देख लीजिए डिफरेंस क्या है. एक कंटेनर पे बनाया और एक मैंने उस पे बनाया. तो कंटेनर पे हमने जावा इंस्टॉल करा, सारी चीजें हमें मैनुअली करनी पड़ी. सॉरी फिजिकल मशीन पे जो वर्चुअल मशीन पे. बट कंटेनर के थ्रू में ऐसा कुछ नहीं क्योंकि किसी ने इमेज बना के रखा है, सारे सेटअप ऑलरेडी इनबिल्ट करके रखे हुए हैं. Got it the point? Guys, is it clear how to install Jenkins? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर ये जो लास्ट स्टेप करा है किस लिए करा आपने? सब इनबिल्ड है. क्या कह रहे हो? किसी ने कुछ कहा था अभी? ये जो लास्ट स्टेप करा आपने ये किस चीज के लिए करा, क्यों करा है? ये लॉगिन करने के लिए Jenkins पे. जब भी आप Jenkins एक्सेस करेंगे तो वो आपसे लॉगिन पूछेगा ना. तो लॉगिन करने के लिए आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए वो आपसे पूछेगा. ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका. So when you first access a new Jenkins instance, you are asked to unlock and using automatically generate password. तो आपको इस लोकेशन पे जाना है और यहाँ से पासवर्ड करके कॉपी एंड पेस्ट कर देना है. Got it? पारुल. Yes, sir. और उसके बाद ये इस तरीके से आपके पैकेज इंस्टॉल होंगे. गाइस मैं एक कंसोल बंद कर दे रहा हूँ डॉकर वाला. होल्ड इट. तो यहाँ पे हमें 2 मशीन की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है? एक ही मशीन पे नहीं कर सकते थे हम सारी चीजें? तो 2 मशीन कहाँ लिया है मैंने? एक ही मशीन तो लिया है. 2 तो मशीन 2 का है. VM लिया 2 ना हमने कि तरीके से एक बताया है. 2 तरीके से बताया है मैंने. एक डायरेक्ट मशीन पे इंस्टॉल करा है, एक मैंने कंटेनर पे करा है. इसलिए मैंने 2 अलग अलग इंफ्रा बनाए हैं. यू कैन सी कि सिंपल सा है कि यहाँ पर आइए. नाउ या तो मैंने क्या करा है, डायरेक्ट मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इंस्टेंस पे, या मैं डायरेक्ट कंटेनर बना रहा हूँ. गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पर आपका got it. इंस्टेंस में वर्चुअल मशीन हो गई और इधर डॉकर कंटेनर हो गया और इधर आप पॉड भी ले सकते हो. तो तीसरे पे मैं अगर क्लस्टर बनाऊंगा तो पॉड के थ्रू डिप्लॉय करूंगा. इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ना. ठीक है, क्लियर हो गया. ये 2 इंफ्रा बनाए हैं ना मैंने अलग अलग. यार मैं अब अगर आपको कंटेनर बनाता कोई पूछता अगर मेरे को EC2 पे इंस्टॉल करना है तो होगा या नहीं होगा? तो कंटेनर पे होगा. तो इमेज से ले लोगे, लेकिन EC2 पे अगर इंस्टॉल करना पड़ जाए तो, और इधर ये फिजिकल मशीन भी हो सकती है. तो फिजिकल मशीन और EC2 इज द सेम प्रोसेस. क्लियर? क्लियर. गाइस इतनी डिटेल में आपको एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेगी नेट पे, ढूंढते रहना. नाउ गाइस अब नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन होने के बाद. चलिए सो जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और जब आप Jenkins का पोर्टल एक्सेस कर लोगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सबसे पहले ये आपसे पूछेगा यूजर डिटेल, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रिएट एडमिन लॉगिन डिटेल्स. ये सबसे पहले एक एडमिन लॉगिन डिटेल्स बनाएगा कि ये आपसे पूछेगा यू कैन क्रिएट अ वन यूजर, जो कि मेरा क्या होगा, एडमिन यूजर होगा. गॉट इट गाइस? वेट,
नाउ गाइस सेकंड पॉइंट कि ये जो यूजर होगा ना, ये आपका एडमिन यूजर होगा। नाउ जब आप एडमिन यूजर डालने के बाद यू कैन जस्ट लॉग इन विद जेंकिन, तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, और डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे इसके, जिसमें आपका आएगा जॉब। पहला आएगा न्यू जॉब। न्यू जॉब का मतलब है गाइस कि आपको कुछ भी ऑटोमेशन प्रोसेस डालना है, यानी कि कुछ भी काम जेंकिन के थ्रू कराना है, तो उसके लिए आपको जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक मैं कराना चाहता हूं कि जेंकिन क्या करे, गिटहब से कोड उठाए और पुल करे, पुश करे, बिल्ड करे और कहां पर सेव कर दे, डॉकर हब के। तो ये दिस इज माय फर्स्ट जॉब, तो मुझे वो सेटिंग्स वहां पर एड ऑन करनी पड़ेगी कि गिटहब का रेपोजिटरी लेना पड़ेगा, गिटहब डॉकर हब का आईडी और क्रेडेंशियल्स ऐड कराने पड़ेंगे, वो सारे के सारे प्रोसेस मुझे कराने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं जॉब। सेकंड आता है मैनेज जेंकिन ऑप्शंस। गाइस मैनेज जेंकिन ऑप्शन जो है ना, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जो भी आपको जेंकिन्स में अपडेट करना है वो सारे ऑप्शंस आपके मैनेज जेंकिन्स में मिलेंगे। सो मैनेज जेंकिन्स के अंदर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, लाइक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन्स इंस्टॉल करना, यूजर क्रिएट करना, सर्वर्स ऐड करना, these all options are available inside the manage jenkins. plugins का मतलब है गाइस सॉफ्टवेयर्स, प्लगइन्स का मतलब है पैकेजेस, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज, कि अगर आप कोई जावा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या आप गिट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या डॉकर से रिलेटेड है, सो आपको डॉकर से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, जेंकिन से रिलेटेड, गिट से रिलेटेड, गिटहब से रिलेटेड, ये सारे के सारे प्लगइन्स आपको क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट गिट बेस्ड है, आप गिट से रेपोजिटरी उठाना चाहते हो और लाइक डॉकर पे आप करना चाहते हो, सो आपको दोनों के प्लगइन्स क्या करने पड़ेंगे, यहां पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और आपका कोई जावा रिलेटेड कोड है गिट पे, सो जावा का भी प्लगइन्स यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस, प्लगइन्स। नाउ कि आपके पास क्या है, कंपनी में अलग अलग यूजर्स हैं, लाइक जावा के प्रोजेक्ट को कोई यूजर लाइक पारुल यूजर देख रहा है, लाइक पीएचपी के प्रोजेक्ट को पंकज मैनेज कर रहा है, और लाइक मैं कहता हूं लाइक पाइथन के प्रोजेक्ट को कुमार मैनेज कर रहा है। सो नाउ यू क्रिएट अ यूजर। सो आप अपने अलग अलग क्या करेंगे, यूजर्स भी यहां पर क्रिएट करेंगे, एंड नाउ उन्हीं यूजर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उन्हीं यूजर्स के अकॉर्डिंग आप अपने राइट्स एलोकेट करोगे पर्टिकुलर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। नाउ कि गाइस बाय डिफॉल्ट जब आपने जेंकिन बनाया, तो दिस इज अ जेंकिन इज कॉल्ड अ मास्टर। जेंकिन क्या है, मास्टर बनाए। नाउ मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जेंकिन के मास्टर और स्लेव कॉन्सेप्ट बना देता हूं, लाइक मैं मल्टीपल जेंकिन सर्वर्स क्रिएट करता हूं, कि मेरे एक ही सर्वर पे लोड ना आके मेरे अलग अलग सर्वर क्या करे, मेरी जॉब्स को एग्जीक्यूट कराए। गॉट इट। सो मैं चाहता हूं कि मैंने एक मास्टर बनाया, मास्टर के हिसाब से मैंने उसके 3 स्लेव और बना दिए नाउ, और एक को दे दिया लाइक अ स्लेव 1 लाइक अ पीएचपी। ये सर्वर पीएचपी की जॉब्स को मैनेज करेगा, और पीएचपी का यूजर अगर यहाँ पर है लाइक अशफाक, तो अशफाक यहाँ पर काम करेगा। लाइक सेम एज पाइथन के लिए मैंने अलग सर्वर बना दिया, पीएचपी जावा के लिए मैंने क्या कर दिया, अलग अलग सर्वर्स एलोकेट कर दिया, लाइक अलग प्रोजेक्ट है, अलग प्रोजेक्ट के लिए मैंने जेंकिन का भी एक अलग डेडिकेटेड सर्वर डिप्लॉय कर दिया, और यूजर्स को उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल बना दिए। सो यू कैन क्रिएट अ यूजर, यू कैन ऐड अ नोड, नोड का मतलब है सर्वर्स, आप मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो, प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो, सारा का सारा काम मैनेज जेंकिन्स के अंदर आता है। So now how to install plugins, like plugins की मैं बात करता हूं कि लाइक कि अगर आपको कोई अदर सर्वर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि सपोज करिए कि दिस इज योर जेंकिन्स, और आप इस सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हो, आप इस सर्वर पे लाइक दिस इज अ EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस है। अब आप इस EC2 इंस्टेंस को जेंकिन के साथ क्या करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो। नाउ सो आपको यहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा पब्लिश ओवर SSH प्लगइन्स।
कहां पर? जेंकिन पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पब्लिश ओवर एसएसएच प्लगइन। अगर आपकी रेपोजिटरी है, लाइक दिस इज योर गिटहब रेपोजिटरी, और आप गिटहब रेपोजिटरी को भी क्या करना चाहते हो? जेंकिन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। सो आपको यहां पर भी क्या है? गिट एंड गिटहब के प्लगइन्स क्या करने पड़ेंगे? इंस्टॉल करने पड़ेंगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ कि आपकी कोड कहां पे पड़ा हुआ है? यहां पर कोड पड़ा हुआ है। लाइक आपको कोई वेबसाइट इस सर्वर पे डिप्लॉय करनी है, तो अब जेंकिन क्या करेगा? जेंकिन क्रिएट अ जॉब। जेंकिन यहां पे एक जॉब क्रिएट करेगा। उसका क्या काम रहेगा? उसका काम रहेगा इट्स पुल अ कोड। वो यहां से क्या करेगा? कोड को पुल करेगा एंड देन डिप्लॉय अ कोड इन दिस सिस्टम। गॉट इट द प्रोसेस? और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉब। लेकिन इस जॉब को एग्जीक्यूट कौन करा रहा है? जेंकिन, जो कि मास्टर है। आप कहते हो कि लोड ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक और सर्वर बना सकते हो जेंकिन, और आप चाहते हो कि इस जॉब को ये ना एग्जीक्यूट करा के कौन एग्जीक्यूट कराए? ये एग्जीक्यूट कराए, तो ये एग्जीक्यूट कराएगा इस प्रोसेस को। गॉट इट द पॉइंट? नहीं नहीं, जेंकिन का एक और मशीन हम लेंगे। आइदर यू क्रिएट अ कंटेनर, आइदर यू क्रिएट अ सेपरेटली मशीन। गॉट इट? सो गाइस, लोड शेयरिंग के लिए भी ना, क्योंकि एक सर्वर पे तो हम डाल नहीं सकते, तो मल्टी सर्वर्स भी तो बनाने पड़ेंगे हमें। एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? So now you can see guys that my Jenkins is ready to use. Now I'm just create a one user, his name is ICCP and the password is AHD@1234, and now the AHD@1234. Now full name is ICCP Infotech. Many ID username, this is my admin, and now the save. And now guys, you can see you can show the your Jenkins dashboard. This is a new pupil. कितने यूजर्स हैं? ओनली वन यूजर है। अभी मैंने कोई यूजर बिल्ट हिस्ट्री, हमने कोई कोड बिल्ट ही नहीं करा, इसमें कोई बिल्ट ही नहीं दिखा रहा। मैनेज जेंकिन जो मैं अभी आपको बता रहा था, नाउ यू कैन इंस्टॉल अ प्लगइन्स, और कौन कौन से प्लगइन्स आपके इंस्टॉल्ड है वो सारी चीजें आप यहां से करेंगे। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स। आप जो भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते जाएंगे उस हिसाब से वो सर्विसेज एड ऑन होती हुई जेंकिन पे चलती जाएंगी। गॉट इट गाइस? Everyone, is it clear how to install Jenkins? Enough for today or continue? Got it, sir. Thank you guys. So बताइए guys, enough for today?